Good morning, students. In structure of atom, we are going to study here the quantum numbers. 4 quantum numbers are there for an electron in an atom. These are principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Principal quantum number and magnetic quantum number are discussed earlier. Now the next is the magnetic quantum number. From the principal quantum number, we get the principal cell of electron, that is the orbit to which the electron belongs. From the azimuthal quantum number, we get the subcell to which the electron belongs. Subcell, that is the subdivision of orbit. The subdivision of orbit is known as the subcell, and by knowing the value of azimuthal quantum number, we get the subcell to which the electron will belong in a particular cell. The third quantum number is the magnetic quantum number. Now this magnetic quantum number will give the orientation of the orbital, that is the direction in which the orbital will be arranged. Further, the magnetic quantum number will give the shape of the orbital and the orientation of the orbital. The shape of the orbital and the orientation, that is the direction of the orbital, will be given by the magnetic quantum number, as well as the magnetic quantum number will give us the number of orbitals in a given subcell. In the subcell, now here remember that cells are divided to the subcell. Further, the subcells are divided into the orbitals. The subcell are divided into the orbital, and the number of orbitals in a particular subcell is given by the magnetic quantum numbers. Here, for any subcell, that is for a given value of L, azimuthal quantum number, there are twice L plus 1 values of magnetic quantum number, that is ML. किसी भी सबसेल के लिए, मतलब किसी भी L वैल्यू के लिए टोटल वैल्यू जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो होती है ट्वाइस L प्लस 1. ranging from minus L तो 0 to प्लस L. यहां पे जो ट्वाइस L प्लस 1 वैल्यूज रहेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, उनमें से फर्स्ट वैल्यू माइनस L, मिडल वैल्यू 0 और लास्ट वैल्यू प्लस L रहेगी. तो इस रेंज में यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज रहेगी. तो देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन L इक्वल टू 0. अब जब L की वैल्यू 0 है तो सबसेल का नाम होता है यस सबसेल. सबसेल का नाम होता है यस सबसेल. यस सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है. देयरफॉर फॉर यस सबसेल टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML इक्वल टू ट्वाइस L प्लस 1. ट्वाइस L की वैल्यू 0 है, देयरफॉर ओनली वन वैल्यू इज देयर. ट्वाइस L प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1. मींस फॉर यस सबसेल सिंगल वैल्यू ऑफ ML इज पॉसिबल. ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिंगल वैल्यू पॉसिबल है यहां पे. And if single value is possible, then that single value will be definitely the middle value, that is ML equal to 0. Single value of magnetic quantum number is possible, that is ML equal to 0. It means a S subcell is not further divided, or the S subcell contain the single orbital. S subcell के अंदर single orbital रहेगी. Only one orbital will be there in the S subcell. Why the S subcell has the single orbital? Because for the S subcell we know that the magnetic quantum number, the azimuthal quantum number is L equal to 0. एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है. अब जब यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज कैसे निकालते हैं? बाय द फार्मूला ट्वाइस एल प्लस वन। एल की वैल्यू पुट कर दो, ओनली वन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। और जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिंगल वैल्यू पॉसिबल है तो रेंज देख लीजिए, माइनस एल से लेके जीरो से लेके प्लस एल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी रहेगी? ml इक्वल टू जीरो। अब जब सिंगल वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, पर्टिकुलरली ml इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ पे यस सबसेल के अंदर सिंगल ऑर्बिटल रहेगी, ओनली वन ऑर्बिटल इज देयर इन द यस सबसेल। और यहाँ पे यस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल रहेगी उसका डेसिग्नेशन रहेगा यस ऑर्बिटल, उसका सिंबल रहेगा यस ऑर्बिटल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखिए, व्हेन L इक्वल टू वन। अब L इक्वल टू वन है मतलब सबसेल कौन सी? सबसेल P, P सबसेल। और अब P सबसेल L, that is the azimuthal quantum number is equal to 1. Therefore total values of ml azimuthal quantum number twice L plus 1 equal to twice into 1 plus 1 equal to 3. टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी 3। अब रेंज देख लीजिए कौन सी है, ये रेंज। तो ml की वैल्यूज कौन सी रहेगी? देखिए ml इक्वल टू माइनस एल, एल की वैल्यू 1 है, माइनस 1। दूसरी ml की वैल्यू ml इक्वल टू 0, तीसरी ml की वैल्यू ml इक्वल टू प्लस एल, दैट इज प्लस 1। सो थ्री वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर पॉसिबल हियर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए तीन वैल्यूज पॉसिबल है, वो तीन वैल्यूज कौन सी रहेगी? माइनस 1, 0 और प्लस 1। कौन से सबसेल के लिए? फॉर P सबसेल, दैट इज द सबसेल फॉर विच द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1। और इस तरह से ये जो P सबसेल है, ये P सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तीन वैल्यूज पॉसिबल होने की वजह से यहाँ पे P सबसेल का डिवीजन 3 ऑर्बिटल में होता है। P सबसेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितनी? 3 orbitals. In the P subcell there are 3 orbitals because for the P subcell 3 values of magnetic quantum number are possible. अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, when L equal to 2, L की वैल्यू जब 2 होती है तो इस सबसेल का नाम होता है D सबसेल। इट इज अ D सबसेल। The subcell is designated by D. अब देख लीजिए फॉर डी सबसेल टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस 1। तो 2 इंटू एल की वैल्यू यहां पे 2 है, प्लस 1। टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर 5। अब ये 5 वैल्यू इस रेंज के अनुसार कौन सी रहेगी? इस रेंज के अनुसार ml की जो 5 वैल्यूज रहेगी ये कौन सी? ml 5 values of ml, 5 values of magnetic quantum number, minus L that is minus 2, then minus 1, then 0, then plus 1, then plus 2. These are the 5 values of magnetic quantum number for D subcell. ये जो D सबसेल है, जिस सबसेल के लिए L की वैल्यू 2 है, ऐसे सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू पॉसिबल है। मतलब D सबसेल का डिवीजन कितने ऑर्बिटल में होगा? 5 ऑर्बिटल में। The D subcell will be divided into the 5 orbitals. D subcell के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल रहेगी। यस सबसेल के अंदर सिंगल ऑर्बिटल, क्योंकि यस सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिंगल वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज ml इक्वल टू 0। P सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू पॉसिबल है, माइनस 1, 0 प्लस 1। और इस तरह से P सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स। लेकिन D सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 5 वैल्यू पॉसिबल होने की वजह से डी सबसेल का डिवीजन 5 ऑर्बिटल्स में होता है। और ये 5 ऑर्बिटल्स इस तरह से 5 वैल्यूज होने की वजह से 5 ऑर्बिटल्स रहेगी। तो देख लीजिए, टेबल देख लेते जरा कि कौन से सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स रहेगी। देखिए टेबल, सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, value of n principal quantum number, then total values of L
एजीमुथल क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज ऑफ यल, कौन सी यल की वैल्यूज है, देन टोटल वैल्यूज ऑफ ml, total values of ml, that is total number of orbitals. देख लीजिए यहां पे सेल है के के लिए n की वैल्यू 1, सो टोटल वैल्यूज ऑफ l ओनली वन वैल्यू इज देयर, क्योंकि l की जो टोटल वैल्यू रहती है वो n के बराबर रहती है, एक n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे टोटल वैल्यूज ऑफ l 1 रहेगी और वो वैल्यू रहेगी l इक्वल टू 0, ओनली वन वैल्यू इज देयर दैट इज l इक्वल टू 0। जब l की वैल्यू 0 होती है तो ml की वैल्यू ट्वाइस l प्लस 1 के अनुसार, ट्वाइस l प्लस 1 के अनुसार ml की वैल्यू एक ही वैल्यू होगी दैट इज ml इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल। k cell contain only one orbital, then l cell, for l cell the value of n is 2, therefore two values of magnetic quantum azimuthal quantum number are there, two values of l, therefore two values of l are here l equal to 0 and l equal to 1. These are the two values of azimuthal quantum number for the l cell, and therefore the l cell is divided into two subcells. These subcells are S subcell and P subcell. Here only one subcell is there, that is S subcell, but it contains two subcells, S subcell and P subcell. But for the S subcell, only one value of ml will be there, that is ml equal to 0. But for the P subcell, there are three values of ml, ml equal to -1, ml equal to 0 and ml equal to +1. These are the three values of ml. That is the magnetic quantum number for P subcell. Therefore, P subcell is divided into 3 orbitals and total number of orbitals in the L cell will be 1 plus 3, that is the 4. अब देख लीजिए m के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यूज भी 3 रहेगी। अब ये 3 वैल्यू कौन सी रहेगी, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 2, क्योंकि जो l की वैल्यूज होती है वो कौन से रेंज में रहती है, 0 टू n-1, 0 से लेके n-1, n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 - 1 यानी 2 लास्ट वैल्यू। ये 3 वैल्यूज यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो l सेल है, m सेल है, m सेल के अंदर 3 सबसेल रहेगी, S subcell, P subcell और D subcell. These are the 3 subcells which are present in the third orbit, that is the m cell. अब ये l इक्वल टू 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सिंगल है, ml इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 यानी P सबसेल के लिए ml की 3 वैल्यूज है, ml इक्वल टू -1, 0 एंड +1, और l इक्वल टू 2 के लिए ml की 5 वैल्यूज है, ml इक्वल टू -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो यहां पे देख लीजिए थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 सबसेल है, s, p और d, उसमें से s सबसेल में सिंगल ऑर्बिटल रहेगी, s सबसेल में सिंगल ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, और टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएगी यहां पे 9। टोटल 9 ऑर्बिटल्स आर देयर इन द m सेल। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल की संख्या होती है, कौन से सेल में, कौन से सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स रहेगी, एक आईक्यू पर से पता चलता फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फ्रॉम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वी नो द सबसेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। जैसे यहां पे बोल दिया किसी ने, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है, उसके बाद में l की वैल्यू बोल दिया 2 है, और ml की वैल्यू -2 है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल सेल को बिलोंग करेगा, कौन से सबसेल को बिलोंग करेगा, और कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग करेगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिए n इक्वल टू 3 मतलब वो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल को बिलोंग करेगा, दैट इज m सेल, थर्ड सेल को बिलोंग करेगा।
उसके बाद में L इक्वल टू 2 है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डी सबसेल को बिलोंग करेगा, यहां पे थर्ड सेल के डी सबसेल में रहेगा पर्टिकुलरली। और फिर Ml की वैल्यू -2 है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इस डी सबसेल के पहले वाले ऑर्बिटल में रहेगा, जो भी डिसिग्नेशन रहे उसका उस पहले वाले ऑर्बिटल में रहेगा। और इस तरह से यहाँ पे अपने को उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी, मतलब वो पर्टिकुलरली कौन से ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर कौन से सबसेल में, सबसेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में, इस तरह से इंफॉर्मेशन मिली। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थैंक यू।